Good morning, viewers, and welcome back to Trans India. Real people, real emotions. Last month, All India Motor Transport Congress held its managing committee meeting in Bangalore, which coincided with the South Zone Convention as well, organized by SIMTA. The event was attended by General V.K. Singh, Minister of State for Road Transport and Highways, Government of India, and Mr. S. Sivasankar, the Transport Commissioner of Tamil Nadu, amongst many other dignitaries. However, our beloved Transport Minister, Mr. Nitin Gadkari, once again decided to skip this AIMTC event. All through the day, transporters and truckers from across India deliberated on issues related to the trade, though most of these issues are being discussed for years now without a definite solution to these problems. On the sidelines of the meeting, Trans India spoke to some transporters and truckers to understand what their problems were. We spoke to Mr. Mukesh Dave from Ahmedabad, Mr. Nagaraj Naidu from Goa, and Mr. A.P. Jilani from South India. Incidentally, all these three people have been trying to work hard to help the industry in one way or the other. दोस्तों, टोल टैक्स का एक ऐसा मसला है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से परेशान किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि टोल टैक्स कम हो जाना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी एहसास करना होगा, हमें यह भी समझना होगा कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक टोल टैक्स पे डिपेंडेंट है। आज ट्रक्स की एफिशिएंसी बढ़ी है, हमारा टर्न अराउंड टाइम बेटर हुआ है बेहतर सड़कों की वजह से। देयर इज़ नो डाउट that the government is putting in a lot of effort, a lot of money in building good roads, expressways and highways, which in turn are helping the road transport industry. लेकिन साथ ही साथ टोल टैक्स अग्रीमेंट में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि एक बार जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर हो जाती है, टोल टैक्स हैज़ टू बी लेवीड टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ओनली। जी हाँ, टोल टैक्स सिर्फ 40% तक कलेक्ट करना है। आज की डेट में ऐसे कई टोल हैं जहां पर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर हो चुका है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स 100% वसूला जा रहा है। We have one simple question to ask the government. If there is a provision in the law, in the rules, which says that toll tax has to be levied to the extent of 40% only, why is it not being implemented? क्यों ज़रूरत पड़ रही है ट्रांसपोर्टर्स को गवर्नमेंट को लेटर लिखने की या कोर्ट केस करने की कि इस रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए? दोस्तों, मुकेश दवे जो अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत मेहनत करी है। He has been following up on this issue with the government, including writing letters to Mr. Nitin Gadkari himself. He has been trying to collect a lot of data on this with the help of Mr. Naveen Gupta, the Secretary General of AIMTC. तो अब तक की क्या डेवलपमेंट है इस केस में और क्या फ्यूचर प्लान है AIMTC का टू हैंडल दिस इशू? Let's hear it from Mr. Mukesh Dave as he talks to us and tells us more about this problem. Mr. Mukesh Dave. The aspect of the toll, right now we have got one subject which we are negotiating with the government also, as well as we have looked from the legal aspect also. When in 2013 it was been decided that whenever the private concessionaires who have developed the road and will give the road back to the government, it means that they have recovered their cost of developing that road. When these roads and other things were developed by the private agencies and every user had to pay a fee for that, a money for that, it was never been objection from the side of the AIMTC and the transporters, because we were looking for a better infrastructure within the country, and that was been appreciated. It had developed well, but simultaneously there were lot many rules were being laid down along with that,
when the road, the recovery is been completed on public funded roads and on the build, operate, transfer BOT roads, when the private concessionaire will complete the recovery and complete the tenure, they will give a charge back to the government. In certain places we have come to the notice that before taking the BOT roads, they were given some premium also to the government. It means that when the tenure is getting over, a private concessionaire has made a good money, or they have recovered their investment along with the interest and profit on that. Government had ruled out, he laid down a rule that after the road has been given to the government will be charging through another agencies a 40% of the last toll to be collected on that road as a maintenance of that road. Now this rule was notified, it was gazetted, it was circulated, everybody was knowing that. But recently our team looking after the toll roads in India found that 5 roads, one of the busiest stretch between Gujarat and Maharashtra, that is Bombay, where daily movement is not less than 15 to 20,000 vehicles per day. There they had to collect the 40%, but government has still not reverted back on this, and they are collecting 100% toll. This is very objectionable. Though we never objected to the infrastructure development or any cost which government decided to use that road, but when the rule is been there, a notification is there, it is a gazetted situation. Unfortunately, we have written to everybody, we have knocked the door of each and every authority, National Highway Authority of India, MORTH and other things also, but we haven't got any response to that. And now lastly, I think that we have already finalized to submit a PIL on this implementation of the rule only. Our plea in this PIL is that this rule should be implemented, and that will roll out from the Gujarat High Court on Monday. You see, as I'm associated with this trade for 25-30 years, and today also I am an active transporter in the country, though I am confined to state of Gujarat, you see lot of changes have taken place in the logistic requirement and logistic service providers, and that we should adapt to all these new methods, new requirement, new fundamentals, because conventionally and traditionally movement of the road goods within the country has come to an end, and now the new requirement right from vehicles, movement, time taken, freight value, economics, everything has changed, and we have to compatible to that situation in our country that more than 75% to 80% people are the self-employed people. They might be falling into the unorganized category. But I'm talking about those 20%, 25% people who are organized, educated, their new generation is coming into the trade. It is their responsibility to change the total scenario of logistic services in the country in the coming years. As we heard from Mukesh Bhai, it is very evident that AIMTC, especially Mr. Mukesh Dave and his team, have been working very hard to get this relief for the transport industry. On the other hand, we have a small state, Goa, which may be small in size but is very relevant to the road transport industry. A lot of trucks pass through the state, but unfortunately there is no kind of provision for the truckers or the drivers. To tell us more about this, we have the Secretary of Ponda Goods Transport Association, Mr. Nagaraj Naidu. He will tell us more about the problems in Goa, but after this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस।
महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। वेलकम बैक टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। हमारे साथ है नागराज नायडू जी, जो पोंडा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। ये हमें बता रहे हैं कि गोवा में ट्रांसपोर्टर्स, ट्रकर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं और साथ ही साथ एक सड़क के बंद होने से ट्रकर्स और ट्रांसपोर्टर्स को कितनी मुश्किलें हो रही हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल लॉसेस। हियर इज मिस्टर नागराज नायडू फ्रॉम गोवा। सर, हमारे गोवा का मतलब जब से वहाँ पे मतलब बोलते हैं कि रोड या जो जब से गाड़ियाँ गोवा आना शुरू हुई है, तब से कॉमन प्रॉब्लम जो मतलब गोवा वालों के लिए और अपने मतलब बाहर से ऑल ओवर इंडिया से जो गाड़ियाँ गोवा के अंदर आती है, उनके लिए मेन प्रॉब्लम है पार्किंग। तो पार्किंग के मतलब ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के, बहुत सारे गवर्नमेंट के खुद के पार्किंग्स है जो अलॉट किए हुए गाड़ी वालों के लिए। और देखने गए तो अदर फैसिलिटीज़ के साथ, जैसे कि सुलभ शौचालय, रेस्ट रूम और ये सब कुछ। पर गोवा में आज तक ये कुछ फैसिलिटी आज तक ना गोवा वालों के लिए, मतलब जो लोकल गाड़ी के लिए उनके लिए नहीं हुई, और जो नेशनल परमिट की गाड़ियाँ जो गोवा के अंदर आते हैं उनके लिए भी नहीं हुई। तो हमारा मेन डिमांड मतलब जो मेन फैसिलिटी जो नेशनल परमिट गाड़ी वालों के लिए जो मेन फैसिलिटी चाहिए, वो चाहिए पार्किंग विद अदर फैसिलिटी, जैसे कि सुलभ शौचालय, रेस्ट रूम, जो मेन प्रॉब्लम है गोवा के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अपने मतलब गोवा को टोटल 3 स्टेट्स मतलब 3 NH लगते हैं। जैसे कि एक गोवा बॉम्बे हाईवे जो अभी चालू है, गोवा बॉम्बे हाईवे जिसका काम भी चालू है, और NH17 भी जो मतलब अपने केरला से जो आती है, NH17 भी जो आती है अपना एल्लापुर होके कानकोन आके गोवा के अंदर आती है। और मेन जो था जो मतलब स्मॉल व्हीकल से लेके मल्टी से लेके मतलब 14 टायर से लेके 16 टायर के लिए जो मेन रोड था वो था NH4B जो हुबली से स्ट्रेट गोवा के अंदर आती है। और पिछले 4 साल पहले मतलब गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम मतलब हाईवे एक्सपेंशन के लिए काम हाथ में लिया था। तो करते करते थोड़ा मतलब फॉरेस्ट एरिया का कुछ उनका प्रॉब्लम चालू हो गया। NGT ग्रीन टर्मिनल और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस ग्रीन टर्मिनल है, ग्रीन टर्मिनल वर्सेस कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और प्लस नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये तीनों का मतलब अभी केस चालू हुए कोर्ट में, जिसकी वजह से 4 साल से गोवा का जो मेन हाईवे, जो कनेक्टिंग हाईवे, जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला हाईवे, वो बंद है। तो अगर सरासर मैंने 2-3 बार मतलब अपने नितिन गडकरी साहब के तक मैंने मैसेज पहुंचाई हुई अपने गवर्नमेंट के थ्रू। मैंने कॉस्टिंग जो उनकी लगाई हुई है, मतलब इसके ऊपर मतलब अपनी गाड़ी वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मैंने कॉस्टिंग उनके सामने रखी है। फॉर एग्जाम्पल कि जो सीधा रास्ता जो बंद रास्ता है, जो फिलहाल अभी बंद है, वो 130 किलोमीटर हुबली पहुंचते मतलब कर्नाटक को जाके ज्वाइन होती है। अब ये रास्ता बंद होने की वजह से हर गाड़ी 150 किलोमीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब दूसरा रूट लेके 150 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। इस हिसाब से 150 आने में 150 जाने में 300 किलोमीटर पर गाड़ी का वहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसके कारण देखने गए तो आज का डीजल के हिसाब से देखने गए तो 5,000 से 6,000 प्रति ट्रिप का गाड़ी वालों को नुकसान हो रहा है। और उस हिसाब से हर एक गाड़ी अगर महीने को 4 या 5 ट्रिप मार रही है तो उस हिसाब से 25,000 रुपये सरासर एक गाड़ी वाले को नुकसान हो रहा है। जो अभी ये जो रास्ता बंद है ओनली फॉर मतलब सिंगल एक्सल के ऊपर सभी गाड़ियां बंद है, ओनली सिंगल एक्सल अलाउड है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हर बार इग्नोर करते आ रही है, चाहे वो लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज हो या एक सड़क बंद करने से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रकर्स को और साथ ही साथ देश को। गवर्नमेंट हर बार कहती है कि हमारा फ्यूल इंपोर्ट बिल बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर रोज हजारों लीटर डीजल की वेस्टेज हो रही है जस्ट फॉर क्लोजिंग वन रोड। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये इस मुद्दे पर ध्यान दे, जो कि आसानी से सुधारा जा सकता है। दोस्तों, ट्रकर्स की और भी प्रॉब्लम्स हैं। किसी वजह से ट्रकर्स दिन ब दिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है उनके फाइनेंशियल हेल्थ के साथ। हम बात करेंगे AP जिलानी जी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल,
real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक Cut! वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे। मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Trans India, real people, real emotions. हम हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के साइडलाइंस पे और हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकर्स के साथ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दिस इंडस्ट्री इज फेसिंग। हमारे साथ जुड़े हैं एपी जिलानी जी, जो आंध्रा तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जिलानी जी एक ऑन ग्राउंड वर्कर है और उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन से कई ट्रकर्स को, कई ड्राइवर्स को बहुत फायदा हुआ है। जिलानी जी हमें बता रहे हैं कि ट्रकर्स की क्या समस्याएं हैं और कैसे वो दिन ब दिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं। लेट्स लिसन इनटू व्हाट मिस्टर जिलानी हैज टू से। हम जो है 12 साल से इस बॉर्डर पे हमारे लारी मोटर मालिकों के लिए और मोटर वर्करों के, ड्राइवरों के लिए, खलासियों के लिए, कर्मचारियों के लिए है ना, हम उस बॉर्डर में वो कई सारी मेहनत किया है, कई सारे लोगों को मदद भी किया है और हमने भी है ना पूरे हिंदुस्तान से हमने भी कई सारे एसोसिएशनों से मदद भी लिया है। लेकिन भाई ये क्या हो रहा है, आने है ना हमारे जो दिन रोजाना हमारा दिन हमारे मोटर मालिकों की हाल बेहाल हो रहा है। हर रोज हम पे कर्जा बढ़ता जा रहा है और ऐसे कर्जा बढ़ता जा रहा है कि हम उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते ये कर्जा क्यों हो रहा है, हम क्यों कर्जदार हो रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि भाई ये अब शायद अब होगा कि पढ़ा लिखा हुआ लोग मोटर फील्ड में एंट्री दे रहा है, जिसका मालिक फ्लीट ओनर है और उनके औलाद तो थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ था। हमने तो बगैर पढ़े लिखे नहीं पढ़ने की वजह से इस फील्ड को आना पड़ा। लेकिन कई सारे ड्राइवर लोग भी है ना बगैर पढ़ने की वजह से इस मोटर फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन हमको इसका जो पूरा का पूरा लाभ जो है, जो ये प्राइवेट सेक्टर जो आज पे जो रूल कर रहा है, जैसा कि टोल टैक्स पे फास्ट टैग और ये सब जो जीएसटी के नाम पर और नोटबंदी के नाम पर, भाई जी सबसे पहले हम बोलता है कि जब से नोटबंदी लगी हमारी बर्बादी शुरू होगी। ये तो क्लियर कट है, क्योंकि ये एकदम हम पे बोझ बढ़ गया कि नोट बदल गया और उल्टा नोट के बदल में चेक आ गया। लाख रुपए का किराया भरता है और 90,000 एडवांस देना पड़ता है। 90,000 का चेक में लिख के हमारे को दे देता है और चेक लेने के जाके बैंक टू बैंक ट्रांसैक्शन के 3 दिन होता है, 3 दिन गाड़ी रुका रहा है। जब तक ये पैसा नहीं आता तब तक हम नहीं जा सकते। और जिसके पास माल है वो चला जा रहा है, जिसके पास माल नहीं है रुका जा रहा है। और 3 दिन गाड़ी खड़े हुआ, गाड़ी में एक दिन का कम से कम मिनिमम 30,000 उसका ईएमआई लगाओ तो रोजाना का 1,000 रुपये ईएमआई का लग जाता है। और ड्राइवर का खर्चा रोजाना का अगर 300 से 400 बोला उसका 1200 लग जाता है। और रोड इंश्योरेंस का कम से कम एक रोज का 400 रुपये लग जाए तो 1200 रुपये उसके इंश्योरेंस के लग जाते हैं। और जो क्वार्टर टैक्स जो है उसका
6 से 7 हजार हम बन रहा है, तो उस हिसाब से 300 रुपए तो हमारा चल जा रहा है। तो खड़ा हुआ गाड़ी का भी हम एक रोज पे है ना 2 से 2,000 2,500 हम नुकसान पा रहे हैं। अब ये भैया हमारे को समझ में नहीं आ रहा है हम क्यों नुकसान हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, रोजाना की बढ़ोतरी हो रही है, हर चीज हर टैक्स बढ़ रहा है। अब देखो तो जो जैसा कि ये बढ़ाया कौन सा जो क्या बोलते टन्नेज बढ़ाया, जो कंपनी गाड़ी जो कंपनी मैन्युफैक्चर वाला ने इसने 16 टन का गाड़ी बोल के उसने उसका जो डीजल का और फ्राइट का और उसका वेट का उसका पूरा उसके माध्यम उसका इंजन पावर हार्स पावर का उसने गाड़ी रिलीज की। अब गवर्नमेंट क्या किया, उस पे 3 टन का एक्स्ट्रा डाल दिया। वजन तो बढ़ा लेकिन टायर घटा, इंजन घटा, पूरा हर चीज ऑयल ज्यादा ले रहा है। जो गाड़ी 4 साढ़े 4 आना है आज वो गाड़ी 19 टन डालने से 3 साढ़े 3 आ रहा है। तो इस तरह की है ना अननोन जो स्लो पॉइजन बोलते हैं ना, इस तरह के स्लो पॉइजन के माध्यम से है ना छोटा मोटा गाड़ी वालों को है ना जो रोजाना कर्जदारी में फंस रहे हैं। और यहाँ तक के है ना ये जो EMI वाले भी है ना जिसका 10 20 30 40 गाड़ी होता है उनको नहीं सता रहे, जिसका 1-2 गाड़ी होता है उस पर वार ऐसा कर रहे कि उसका गाड़ी रोकते और उसको सीजिंग करते। सीजिंग करने के बाद है ना जब वो EMI बन दिया समझो 2 EMI, अब उसका EMI 60,000, वो जाके किसी के पास खर्चा वर्जा करके लेके आके जब 60,000 बनता है तो सीजर के पास स्लिप लेके जाता है ना, तो सीजर बोलता है मेरे को भी 15,000 बनो। क्या है साहब, कौन लूट रहा है? हर कोई लूट रहा है साहब हमको। भाई साहब हमने 2018 में यही उम्मीद से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2018 में हमने पूरे हिंदुस्तान के लारी ममालिकों में यहाँ तक के AMTC जब उस वक्त की जो कमेटी थी उनके बुलावे पे हमने 8 रोज अपने गाड़ियां भी रुकाया और 8 रोज हमने रास्तों पे, हमारा घर अगर 1 किलोमीटर भी होता तो हमारे घर को जाने के लिए 8 दिन लगता, हमने रुकाया सब, वॉलंटरी रुकाया। तो उस वक्त में है ना हमने राहत के लिए हमने उस जो वक्त में जो सरकार थी वो सरकार को हमारे AMTC वाले ने एक बात पूछा कि साहब हमको टोल परमिट इश्यू करो, जैसा कि जो नेशनल परमिट है इसी की तरह के हमको टोल परमिट को इश्यू करो। हो सका तो आज नहीं तो कल डीजल और पेट्रोल GST में लाओ GST में, और जिसका माल उसका हमाल। भाई जी माल तो पार्टी का है और व्यापार वो करता है, लाभ वो पाता है, और उसके माल को हम क्यों हमाल भरे, हमारे फ्रेट में क्यों हमाल बने। ऐसे छोटे 3-4 चीजों में हमारे को है ना हमारा सरकार हमारे को साझेदारी दे दिया। तो साहब मैं आपके माध्यम बोलते हैं अगर वो हमारे को राहत देंगे 2024 में हम इनको दोबारा हुकूमत भी देंगे। Well, friends, it is very clear that the road transport industry is surrounded by a lot of problems. While large transport companies or those who are better organized are finding their way out through this maze, but the industry at large is still struggling. A couple of issues that we feel are hampering the industry is lack of uniform policies, and the second one is the understanding of the operating cost. Unfortunately, many transporters and truckers do not know what the basic operating cost of their truck is. The other big problem for the road transport industry is shortage of truck drivers. We have been talking about this issue for a long time, but to date, there has been no definite solution for this. We keep asking the government to build driver training institutes and other facilities. But is that the only problem? And more importantly, is this problem only confined to India? Definitely not. Europe, USA, China, Middle East, all these countries are struggling with shortage of drivers.
So, what exactly is the situation of truck drivers in Europe? The International Road Union, based in Geneva, in a very exclusive interview with Marianne Servoni, the Senior Manager, Strategy and Market Intelligence, and Ms. Natalia Corchado, Market Intelligence Analyst. The duo will shed light on the issues faced by drivers in Europe and also talk about the possibilities of Indian truck drivers making it to Europe. So see you again next Sunday in this very special episode featuring the International Road Union. Until next week, stay safe. Jai Hind.